કોઈ પણ ગોલન પણ વિકલ્પ છે, કોઈ પણ ગોલન પણ વિકલ્પ છે, તો કૃપા કરીને વિધિ સમજાવવા. એ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતો નથી, જાણનારો જણાય છે, અને વિકલ્પમાં જ્ઞાનનું જ્ઞેય પણ નથી. કર્તાનું કર્મ તો નથી વિકલ્પ, આત્મા અકર્તા છે, એટલે વિકલ્પને તો કરે નહીં. પણ વિકલ્પને જાણવું એવું જ્ઞાન જ નથી આત્માનું. ભેદને જાણવું એ જ્ઞાનનું જ્ઞેય જ નથી. ભેદ તો પરદ્રવ્ય છે ભાઈ, પરદ્રવ્યને તો જ્ઞાન જાણતું નથી, અને સ્વદ્રવ્યને જાણવાનું છોડતું નથી. જાણનારો જણાય છે, લે ને તારી સાધ્યની સિદ્ધિ એમાં થઈ જશે ભાઈ. ये प्रश्न आपका है, किसका है? हाँ, तो पांचों ने हिंदी भाषा बराबर मेरे को ख्याल नहीं आता है, बोलो। जो आत्मा हाँ है, कोई अपेक्षा नहीं रहा है, नहीं निरपेक्ष है। निरपेक्ष आत्मा कैसा है? हाँ, पूरा आत्मा आत्मा का स्वभाव पर से निरपेक्ष है, बोलो। वो आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? अनंत गुण का पिंड है जिसमें ज्ञान आनंद भरा है, बस ऐसा आत्मा है। अब इसलिए कि वो आत्मा भाई पर्याय बिना का एक आत्मा, पर्याय से रहित ही आत्मा है। पर्याय से बिना आत्मा, ये पूरा है, पूरा है, देह पूरा है, ये पूरा है, देह पूरा है। और अधूरा नहीं है, और यही आत्मा है, यही आत्मा है। ये उपाधि भूत आत्मा ये यही है, ध्रुव है, वो ध्रुव है, यही है, मगर वो ये नहीं बाकी अभी। मैं तो एक जाय भावी हूँ, मैं तो एक बराबर है, एक जाय भावी हूँ। तो कौन नक्की करता है? वो वही निरंतर जानने में आता है, वही निरंतर जानने में आता है। नहीं, अंतर में जानने में आता है, बहिर्ज्ञान उसको नहीं जानता है। क्या निरंतर जो जानने में आता है बाल गोपाल सबको, वो इंद्रिय ज्ञान में जानने में नहीं आता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं है, हाँ, ज्ञान में जानना आता है, ज्ञान ज्ञान में, में, ज्ञान में। ज्ञान जो प्रकट होता है उपयोग, उसमें निरंतर सबको बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा या एक नाम स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है समय समय पर, मगर उसका लक्ष्य है नहीं तो अज्ञान हो गया। और यही वो जानने में आता है, बेदार हो जाए तो ही काम हो गया। कौन ना बोलता है? कौन ना बोलता है? काम कर लो, काम हो जाए तो हो जाए, बराबर है। और क्या प्रश्न है? मैंने सारी चर्चा बुद्धि चल जाएगी, सारी चर्चा बुद्धि का भी हवा हो जाएगी। अभी जो गायक है ने, वो तो अकर्ता है, तो कर्ता की बात छोड़ दो। अभी अकर्ता की बात तो पहले आ गई कि आत्मा गायक है, तो कर्ता बुद्धि छोड़ना ये भी नहीं है। कर्ता होता ही नहीं है, कर्ता हो गया हो कर्ता प्रतिभासता है, अकर्ता छोड़कर आत्मा तीन काल में राग का कर्ता होता नहीं है। वो आत्मा ही नहीं है, राग को करे आत्मा ही नहीं है। और बावन भाव के जो कीर्तन भाव बताए नियम चाहिए, तो बावन भाव कीर्तन भाव से बावन भाव से अलग एक जात भाव, वही एक पारणामिक भाव जिसका लक्षण है, वो चार भाव जीव का लक्षण नहीं है, पर्याय का लक्षण है, या तो परद्रव्य का लक्षण है, अजीव का लक्षण है। वो
જીનાગમમાં એમાં આવેલું છે, જીનાગમમાં કે પરદ્રવ્યને જાણવું એ અધ્યવસાન છે. જેમ કે હું ધર્મદ્રવ્યને જાણું છું એ અધ્યવસાન છે. હા હવે જ્યાં જણાવવાનું અને જાણવાનું જ્યાં ભેદ નથી, હા એ બેની અર્થઘટન જ્યાં નથી ત્યાં આવી સ્થિતિ ઊભી થાય છે. તો એની અંદર વિશેષતા શું છે, શું હા. સમજવું જોઈએ? આત્માને જાણવાનું છોડીને જ્ઞાનનો જ્ઞાન તો આત્માનું હતું ને, જી હા. જ્ઞાન તો આત્માનું જ છે ને. ત્રણેકા જ્ઞાન તો બધાની પાસે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એ શેનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે? ધર્માસ્તિકાયનું થાય છે કે આત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે? આત્માનું જ્ઞાન છે. પ્રગટ થતું જ્ઞાન આત્માનું જ છે અને એ જ્ઞાન આત્માને જ જાણે છે. સમજાણું? પણ એ આત્માને જાણે છે એમ ન લેતા ધર્માસ્તિકાય આદિ મને જણાય છે, અધ્યવસાન થઈ ગયું. એ અધ્યવસાન થઈ ગયું એનું કારણ પોતાને જાણવાનું છોડ્યું તે. અહીંથી ઉપર ઉપાદાનથી, પછી નિમિત્તથી કેમ અધ્યવસાન થયું કે ધર્માસ્તિકાય તો જ્ઞાનનું જ્ઞેય નથી, જ્ઞાનનું જ્ઞેય તો આ તો, અને જ્ઞાનના જ્ઞેય એને બનાવ્યું તો અધ્યવસાન. અહીંયાથી આત્માનું જ્ઞાન આત્માને જાણવાનું છોડી દે છે. અનંતકાળથી સમયે સમય છોડે છે. મને પર જણાય છે, આ જણાય છે, આ જણાય છે, આ જણાય છે. એ આત્માના સ્વભાવથી જ્ઞાનની પર્યાય ચૂત થઈ ગઈ છે. જેનું જ્ઞાન, જેમાંથી જ્ઞાન આવે છે અને જેને જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ કરે છે એમ ન લેતા જ્ઞાન પ્રગટ થતા વેતા આ મને જણાય છે. એ અધ્યવસાન, મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન. પરને મારી શકું, જીવાડી શકું એ તો અધ્યવસાન છે જ. પણ આત્માનું જ્ઞાન પરને જાણે છે, હું પરને જાણું છું. મોટું પાપ છે બંધધિકારમાં, સમકક્ષાનું પાપ છે. કસાય ખાનાનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે કોઈ, અને કોઈ કે હું પરને જાણું છું, નથી જાણતો એમ નહીં, તો એ બે બંધધિકારમાં સમકક્ષી પાપ કહ્યું છે. એટલે પરને હું જાણું છું એ શલ્ય નીકળવું બહુ મુશ્કેલ છે. હવે સ્વપરને જાણે છે. હું એમ કહું છું કે સ્વપર બે જ્ઞેય હોય તો બે ને જાણે. મને બે જ્ઞેયની સિદ્ધિ કરી દો તો સ્વપર પ્રકાશકને આપાડું. તો મને તો એક જ જ્ઞાયક નહીં જણાય છે, બીજું જ્ઞેય તો જણાતું નથી. કરી દો સિદ્ધિ તો સ્વપર પ્રકાશકની સિદ્ધિ થાય. સર્વે જ્ઞાનીઓની એ વાત છે. બધા જ્ઞાનીને એકલો જ્ઞાયક જણાય છે, બીજું કઈ જણાતું. અને બીજું જેમાં જણાય ને જે જાણે એ આત્માનું જ્ઞાન નથી, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે ભાઈ. એ ભાવ ઇન્દ્રિય છે. ભાવ ઇન્દ્રિય ભલે ને જાણે થોડો ટાઈમ, એ થોડો ટાઈમ જ રહેવાની છે. ભાવ ઇન્દ્રિયની કમર ભાંગી ગઈ છે, એકતા તૂટી ગઈ છે. એટલે જ્યાં કેવળ જ્ઞાન થશે ત્યાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ક્ષય થઈ જશે. હા હા હા. ये समय साहब 68 नंबर के बाद में 68 के बाद में इसके बाद में जीव कौन है? आचार्यों से पूछा हाँ कि दो स्थान मारना स्थान जीव नहीं है, हाँ ये जीव कौन है ये बताइए. हाँ बताइए. तो उन्होंने बताया कि जो अनादि अनंत है, हाँ तो अनादि अनंत में रहना कि जो पर्याय मार्ग के बिन पर्याय चालीसान से क्या पर्याय चालीसान से शांत है. है? पर्याय चालीसान हाँ ठीक है. अब तो अनादि अनंत आत्मा को. अनादि अनंत है. हाँ अच्छा दूसरा लिया हमने कि अचल है. अचल आत्मा तो अचल है. हाँ बराबर. मैंने मेरे प्रदेश कम भी नहीं होते. क्या इसमें आचार्य प्रदेश कंपनी नहीं होती. प्रदेश अचल का अर्थ प्रदेश कंपन भी नहीं होता है ऐसा. हाँ उसमें आत्मा जो अभेद है, अनादि अनंत अनंत गुणना पिंड है, बराबर. उसमें प्रदेश का कंपन नहीं है. प्रदेश कंपन तो विभाव है भैया. वो तो अनात्मा है. कंपन तो अनात्मा है भैया. योग है, आश्रव में डाला है उसने. योग कंपन जो है वो तो आश्रव का भेद है, जीव का भेद भैया. जीव नहीं है तो आपका कहाँ से है? अजीव है वो तो. तीसरा गोल में दिया है सो संवेद. है सो संवेद. स्वसंवेद એટલે अपना ज्ञान से, अंतर्मुख ज्ञान से आत्मा जानने में आता है.
उन्हें उत्तर दिया है कि जो स्वयं अपने आप से ही जाना जाता है। हाँ, अपने आप से ही जानने में आता है बस। तो अपने आप एक ही होता है, पर्याय द्वारा जाना जाता है। और एक पर्याय जब अभेद होती है तब जानने में आता है, पर्याय में नहीं। अपने आप जाना जाता है। जाना जाता ही नहीं है। अच्छा, छुपा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कि प्रकट है, प्रकट है। देखो, जब देखो तब तैयार है। जब दर्शन करो तो उसके लिए दर्शन करना हो तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता नहीं है कि मेरे को आपका दर्शन करना है। हे भगवान परमात्मा, आज तक मैं दर्शन नहीं किया, मगर हमकी रुचि हो गई कि आपका दर्शन करना है, तो कब आप दर्शन देगा? ऐसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, जब जागो तब सवेरा। निरंतर जानने में आता है। जब हाँ बोलो तो हालत हो जाएगी। એટલે જ કિંમત નથી, બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ છે ને, એટલે જ કિંમત નથી. એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડતી હોય તો ખબર પડશે કે કેવી રીતે મળે. બાળ ગોપાલ સૌને સદાકાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા અનુભવમાં આવે છે, હા, જાણવામાં આવે છે, પણ એના તરફ એનું લક્ષ નથી. કાલે વાંચ્યું તો આપણે અખંડમાં જ્ઞાન કળામાં અખંડનો પ્રતિભાસ એ લીધું તો આપણે એમાં ગુરુદેવે કહ્યું કે જાણનારો જણાય છે એને લક્ષમાં લેતો નથી, પણ રાગાદી જણાય છે એને જાણીને એમાં એકત્વ રૂપે પરિણમીને સંસાર ઊભો કરે છે. રાગને જાણનાર જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન છે. इंद्रिय ज्ञान क्यों का अज्ञान क्यों, एक ही बात है. भाव इंद्रिय क्यों का अज्ञान एक ही बात है. प्रसन्नता और ज्ञान बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है. ज्ञान बंध का कारण नहीं, इंद्रिय ज्ञान बंध का कारण है. राग तो बंध का कारण है ही. ये सब प्रवर्तन सार में है. इंद्रिय ज्ञान बंध का कार्य और बंध का कारण है. भाई साहब, 2,000 से दाखिला नंबर 32 में ये आया है कि आत्मा अपने प्रवेशों से जानता है. શું કહે છે? જરા તમારા शब्दમાં समझाતું નથી. अपने प्रवेशों से जानता है. दूसरा आपका जो साथीदार हो ना, तो उसको कहो बोले मेरे को आपकी बात. कोई साथीदार है तो वो जो बोले ना, वो उसका स्पष्टीकरण से बोलो आप, उसको बोलो. दाखिला नंबर 32 में आया है कि आत्मा अपने प्रवेशों से जानता है. बोलो. साल की गाथा 32 में आया है. 32 25 32. अच्छा, आत्मा अपने प्रदेशों से जानता है. हाँ, तो ये कहाँ तक सही है? प्रदेश से जाता है, प्रदेश तो अपने आजू मिलाने आत्मा अपने प्रदेश से जानता है. अपना क्षेत्र में रहकर जानता है, बाहर क्षेत्र में जाता नहीं है. तो एनी मर्यादा प्रदेश कहो, ये अपना क्षेत्र कहो. द्रव्य क्षेत्र काल भाव इधर ही है. क्षेत्र हमेरा वहां है न, आत्मा है ऐसा है नहीं. क्षेत्र से कहो तो अखंडित है, द्रव्य से कहो तो अखंडित है, काल से कहो तो भी अखंडित है, भाव से कहो तो भी खंड होता नहीं है. एक भाव से प्रधानता से कहे तो तीन भाव इसमें गर्भित आ जाता है, अखंडित है, खंडित नहीं होता है. मैं द्रव्य हूं तो इसमें क्षेत्र काल ने भाव आ गया. वस्तु अभेद है, भेद से समझाया जाता है, मगर भेद उसमें होता नहीं है. 270